हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्वेश्चन प्रिंट ऑल द सबसेट्स और सब सीक्वेंसेस विच इज़ ऑल्सो पावर सेट ऑफ अ स्ट्रिंग। सो बेसिकली आपको इनपुट में जो है एक स्ट्रिंग दी गई होगी। लेट से इस स्ट्रिंग की लेंथ है n, तो आपको इस स्ट्रिंग के सभी सबसेट्स या तो सभी सब सीक्वेंसेस को प्रिंट करना है। एंड ऑल सबसेट्स को हम क्या कहते हैं? हम पावर सेट भी कहते हैं, राइट? पावर सेट ऑफ अ सेट इज नथिंग बट द सेट कंटेनिंग ऑल इट्स सबसेट, राइट? So print the power set or print all the subsets or subsequences of a string, right? So basically let's say for an example, if ABC is given in the input, then the output will be A, B, C, A, B, and you can print this in any order, okay? A, B, A, C, B, C, A, B, C and empty string, right? So total, if there are 3 characters, total number of subsets or subsequences will be 2 की power n, that is 2 की power 3, that is 8. And here we can see we have 3, 3, 6 and 2, 8, right? Now I have written subsets or subsequences because subsequences क्या होता है? सबसेट क्या होता है? इसमें से सबसेट का मतलब होता है कि आप ये n कैरेक्टर्स में से एक सबसेट ऑफ कैरेक्टर्स सिलेक्ट करो, राइट? What is the meaning of subsequence? Subsequence means when you delete some or none of the characters from the given string and the remaining characters orders remain the same. Okay, so for example, if you have A, B, C, D, E and F, let's say, so A, C, F ये एक सब सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पे आपने B, D और E इन तीन को डिलीट कर दिया. When you delete some or none of the elements from the given string, then the remaining elements in the same order as the original string forms a subsequence. तो ये जो रिमेनिंग है ए सी एंड एफ, इनका ऑर्डर यही होना चाहिए जो ओरिजिनल में है. ओरिजिनल स्ट्रिंग में पहले ए है, फिर सी है, फिर एफ है, राइट? तो इसको हम सबसीक्वेंस और सबसेट दोनों बोलेंगे. लेकिन अगर ए एफ सी है तो इसको सबसेट तो बोलेंगे लेकिन सब सीक्वेंस नहीं बोल सकते, ठीक है? सो बेसिकली हियर वी हैव टू प्रिंट ऑल द सबसेट्स और सब सीक्वेंसेस. ओके, बेसिकली वी विल नॉट चेंज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल स्ट्रिंग, राइट? तो अब इसको कैसे कर सकते हैं? तो देखो, फॉर व्हाट आर, इफ यू हैव n कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, द नंबर ऑफ सबसेट्स आर हाउ मच? 2 की पावर n. वाई? बिकॉज हर एक कैरेक्टर के लिए आपके पास दो चॉइसेस होती है. आइदर यू टेक इट इन द सेट और यू डू नॉट टेक इट. ओके, the current subset which you are building, either you take the ith character in it or you do not take it. So for example, if I have A, B, C, D, E, I decide not to take this, I decide take this, I decide not to take this, I decide not to take this, and I decide to take this. So the subset which I will get is B, E, right? So basically for every character I have two choices. So if there are total n number of characters, I have two choices for every character, either to take it or not take it. So the total possible combinations is 2 की power n, 2 into 2 into 2 up to n times, right? So we will take the same approach here. For every index from I equals to 0 to n minus 1, for every index we will recursively call two functions. One is when we take that element, one when we do not take that element. For example, wait, you'll understand everything, okay? So let's say this is your recursive function. So from the main function, we will also implement it, so don't worry. From the main function, I'll call this recursive function and I'll pass 0, n. Now I am writing your pseudocode, इसलिए मैं सारे पैरामीटर्स नहीं लिख रहा. एक्चुअल रिकर्शन कॉल में और भी पैरामीटर्स होंगे, बट अभी हमारे काम के ये दो ही है, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो फर्स्ट पैरामीटर विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड सेकेंड विल बी n. अब 0 का मतलब क्या है? दैट यू डिसाइड फॉर द 0th इंडेक्स वेदर यू वांट टू टेक इट इन द सबसेट और you do not want to take it in the subset. Okay, and then move on to the first index. So I'll recursively call from here. I'll do two recursion calls, one on function 1 comma n and another also on function 1 comma n. But here on this path I will decide to take the 0th index element and here I will decide not to take it. Okay, so let's say my string is ABC. So if I decide to take the 0th index element, then the subset generated till here would be A and the subset generated here till now would be empty because I have not taken anything, right? Now again at the first index I will have two choices, either to take the first index element or not to take it. And here also I will have two choices, either to take it or not take it.
If I take the first index element, that is B, here the subset generated would be AB, and if I do not take it, the subset generated will remain A, because first index element मैंने decide किया नहीं लेना है. Here if I decide to take the first index element, that is B, so this is 0 index, first index, second index. So if I decide to take B, so अभी तक ये empty था, now it will become B, and if I decide not to take it, it will remain empty. ठीक है? Now and I will call further recursion on 2, n. n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है. ओके, सो दिस विल बी फंक्शन 2, n, दिस विल बी फंक्शन 2, n, and this will be function 2, n, where n is 3, राइट. अब ये रिकर्शन हम कब तक चालू रखेंगे? जब तक i जो है, सो बेसिकली अगर इस रिकर्शन फंक्शन को आप इस तरह से देखो, i, n, where n is the total length of the string and I is the current character on which we are deciding whether to take it in the subset or not take it. So जब तक I less than n है, हम आगे रिकर्शन बढ़ाएंगे. When our I will become equal to n, we will stop the recursion. ओके, सो जब I इक्वल टू n हो जाएगा, जो भी सबसेट जनरेट हुआ होगा उसको हम हमारे पावर सेट के सेट में ऐड कर देंगे. ओके, so for example, now we are on the second index, so again I have two choices whether to take this or not take this, right? So if I decide to take it or I decide not to take it, I decide to take it or decide not to take it, I decide to take it or decide not to take it, I decide to take it and decide not to take it. Okay, रिकर्शन फंक्शन सब में क्या आएगा? 3, n, n is 3, राइट. सो अगर i की वैल्यू 3 हो गई है, दैट इज n के बराबर, मतलब कि we have decided on all the indexes whether to take or not take on this path, right? तो further recursion नहीं जाएगा, हमारा बेस केस आ चुका है I equals to n, right? यहाँ पे भी फंक्शन 3, एंड यहाँ पे भी फंक्शन 3, ठीक है. Now if you decide to take the second index element, that is nothing but C, then here ए बी तो ऑलरेडी था हमारे पास, अब क्या हो जाएगा? ए बी सी, एंड इफ यू डिसाइड नॉट टू टेक इट, इट विल बी ए बी. Here if you decide to take the second index element, it will become AC. If you decide not to take it, it will remain A. Here if you decide to take the second index element, it will become BC. If you decide not to take it, it will remain B. Here it is empty, so if you decide to take C, it will become C. If you decide not to take it, it will remain empty. तो यहाँ पे जब हमारा I इक्वल्स टू n बेस केस पहुँचा, तो कोई ना कोई सबसेट जनरेट हुआ होगा, जैसे कि ए बी सी, ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी एंड empty. सारे के सारे 8 के 8 सबसेट जनरेट हो गए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ वी विल डू, एंड ये पूरा रिकर्शन ट्री है. तो हमारा रिकर्शन स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से होगा, फिर हम यहाँ पे कॉल करेंगे, वी डिसाइड टू टेक दिस एलिमेंट, फिर यहाँ से यहाँ कॉल करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ कॉल करेंगे. अब ये i इक्वल्स टू n हो गया, तो बेस केस हो गया. तो अभी तक जो सबसेट जनरेट हुआ है उसको हम हमारे पावर सेट के सेट में ऐड कर देंगे, मतलब द सेट कंटेनिंग ऑल दी सबसेट्स. ओके, तो ए बी सी को स्टोर कर लिया और यहाँ से पीछे आ जाएंगे वापस, राइट, बिकॉज ये यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि ये बेस केस मिट हो गया. फिर यहाँ से ये रिकर्शन कॉल जाएगा, राइट. सो ये रिकर्शन कॉल जाएगा, यहाँ पे ए बी है हमारे पास, सो ए बी को ऐड कर देंगे, फिर यहाँ से भी रिटर्न हो जाएंगे. अब यहाँ से सारे रिकर्शन कॉल हो गए, सो यहाँ से भी पीछे चले जाएंगे और यहाँ से हम यहाँ पे आ जाएंगे. सो फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट विल डिसाइड नॉट टेक इट, सो हमारे पास ए है. फिर हम सेकेंड इंडेक्स एलिमेंट को डिसाइड करेंगे लेने का, सो विल गेट ए सी, एंड इफ वी डिसाइड नॉट टू टेक इट विल गेट ए ओनली. फिर यहाँ से भी रिटर्न हो जाएंगे, यहाँ से भी रिटर्न हो जाएंगे, एंड विल रिटर्न बैक हियर. And then we'll go on this path. So we decide not to take this, so it will be empty. Then we decide to take B, then we decide to take C, so we'll get BC. Then we'll go back, then we decide not to take C, so we'll get B. Then from here we'll go back, and from here also we'll go back, and from here we'll come to this path. So यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें मिलेगा C, and if we go back and go on this path we'll get empty. फिर यहाँ से पीछे चले जाएंगे, यहाँ से पीछे चले जाएंगे, यहाँ से पीछे चले जाएंगे, सारे रिकर्शन कॉल हो गए हैं, एंड विल गो बैक टू द मेन फंक्शन. ठीक है, अभी तक हमने फिबोनाची सीरीज भी क्वेश्चन किया है, तो आपको कॉल स्टैक वगैरह तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कैसे होगा. बेसिकली सबसे पहले कॉल स्टैक में ये फंक्शन ऐड होगा, राइट. फिर यहाँ से यहाँ कॉल जाएगा तो ये ऐड होगा, फिर यहाँ से यहाँ कॉल जाएगा तो ये ऐड होगा, फिर यहाँ से यहाँ कॉल जाएगा तो ये ऐड होगा. फिर ये जब बेस केस है तो यहाँ से रिटर्न करेंगे तो ये हमारे कॉल स्टैक में से पॉप आउट हो जाएगा, एंड देन ये वाला ऐड हो जाएगा, राइट.
तो सबसे पहले लेट मी राइट डाउन इट वंस. सो फंक्शन 0,3 ऐड हो जाएगा, देन 1,3 ऐड हो जाएगा, देन 2,3 ऐड हो जाएगा, देन 3,3 ऐड हो जाएगा, राइट. बट ये कौन से वाले पाथ है, यहाँ पे जहाँ पे हम एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. और भी वेरिएबल्स होंगे, राइट, ये रिकर्शन कॉल में, पैरामीटर्स में, बट आई एम नॉट राइटिंग ऑल ऑफ देम. फिर यहाँ से जब हम वापस जाएंगे, जब हम ये पाथ लेंगे तो ये 3,3 पॉप आउट हो जाएगा, राइट. एंड देन यहाँ से हम जब यहाँ आएंगे तब वापस ये 3,3 पुश हो जाएगा, बट दैट विल हैव सम डिफरेंट पैरामीटर्स, राइट, लाइक द जनरेटेड सबसेट वुड बी डिफरेंट एंड सो ऑन. सो दिस विल बी 3,3. फिर यहाँ से जब हम बैक ट्रैक करेंगे यहाँ पे तो वापस ये 3,3 पॉप आउट हो जाएगा. अब ये 2,n भी फिनिश हो गया है, सो विल गो बैक हियर, तो ये भी पॉप आउट हो जाएगा, राइट. एंड देन विल कम हियर, तो अब ये पुश हो जाएगा, राइट, 2,3. बट दिस इज ऑन अ डिफरेंट पाथ, राइट. देर विल बी अदर पैरामीटर्स विच विल बी डिफरेंट, सो दिस विल बी अ डिफरेंट फंक्शन कॉल एंड सो ऑन, राइट. तो यहाँ पे इसका कोड तो हम लिखेंगे ही, बट अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. यहाँ पे आपका जो यहाँ पे अगर आप फंक्शन कॉल्स देखो तो रिकर्शन ट्री की मदद से अगर हम करने जाए तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे कितना है, बेसिकली हर एक फंक्शन में टाइम कितना लगेगा, आइदर यू टेक एन एलिमेंट और नॉट टेक इट एंड मूव फर्दर. सो हर एक फंक्शन में कांस्टेंट टाइम लगेगा एंड देन यू डू दी फर्दर रिकर्शन. तो अगर यहाँ पे एक फंक्शन है तो कांस्टेंट लगेगा, यहाँ पे 2 टाइम कांस्टेंट लगेगा, यहाँ पे 4 टाइम कांस्टेंट लगेगा, यहाँ पे 8 टाइम कांस्टेंट लगेगा एंड सो ऑन, राइट. तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट प्लस 2 टाइम कांस्टेंट प्लस 4 टाइम कांस्टेंट प्लस 8 टाइम कांस्टेंट एंड सो ऑन. कितने टर्म्स आएंगे, जितनी ट्री की हाइट होगी उतनी. ट्री की हाइट कितनी होगी, आई की वैल्यू 0 से लेके एन तक जा रही है, राइट. तो हाइट कितनी हो गई, आई की वैल्यू 0 से लेके एन तक जा रही है, मतलब टोटल n+1 वैल्यूज, तो हाइट n+1 हो गई, मतलब कि n+1 टर्म्स ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन which is nothing but a into r की power n, that is number of terms, -1 upon r minus 1, which is nothing but constant into 2 की power n+1 -1. और अगर हम कॉन्स्टेंट्स वगैरह सब हटा दे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 2 की पावर n. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n. अगर n लेंथ है स्ट्रिंग की तो उन सबको जनरेट करने में भी जो टाइम लगेगा वो बिग ऑफ 2 की पावर n लगेगा, ठीक है. नाउ अगर हम ऑक्सिलरी स्पेस की बात करें, ऑक्सिलरी स्पेस ये जो सबसेट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए नहीं, अगर प्योर अगर सबसेट्स जनरेट करने की बात करें, हालांकि हम उनको स्टोर भी करेंगे क्योंकि स्टोर करके फिर हमें डिस्प्ले भी करने हैं टू क्रॉस चेक कि सही जनरेट हुए हैं कि नहीं. बट लेट से वो स्टोर की हम प्रॉपर सबसेट जनरेशन की अगर ऑक्सिलरी स्पेस की बात करें तो ये रिकर्शन कॉल जितना कॉल स्टैक लेगा उतना ही होगा. और रिकर्शन कॉल के कॉल स्टैक मेमोरी कितनी होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस इन द कॉल स्टैक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. और वो कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम रूट टू एनी ऑफ द लीफ नोड और दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री, राइट, और द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स फ्रॉम रूट टू एनी ऑफ द लीफ नोड. तो वो कितने हैं यहाँ पे, आई की वैल्यू सारे लीफ नोड एक ही लेवल पे है, तो आप किसी भी पाथ को ले लो. तो ये पाथ में कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे, एक पाथ में मैक्सिमम n+1, आई की वैल्यू 0 से लेके n तक जा रही है, राइट. सो ऑक्सिलरी स्पेस आपकी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n+1, दैट इज नथिंग बट बिग ऑफ n, जो आपकी रिकर्शन कॉल स्टैक की मेमोरी होगी वो, है ना, क्योंकि एक फंक्शन इंडिविजुअली तो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी रह रहा है, राइट. सो रिकर्सिव कॉल स्टैक मेमोरी, ओके. एंड ये हमने जब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाले एग्जांपल्स देख रहे थे तब भी मैंने ये बताया था. एक इक्वेशन हमने देखी थी t ऑफ n इक्वल टू 2t ऑफ n-1 प्लस c, और मैंने तब बताया भी था कि ये सबसेट्स जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है. बेसिकली व्हेन यू आर एट n, सो यू मेक 2n-1 कॉल्स. व्हेन यू आर एट, बेसिकली यहाँ पे i की वैल्यू 0 है तो n तक जाएगी, राइट, है ना, और यहाँ पे i की वैल्यू 1 है तो 1 से लेके n तक जाएगी. तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर n+1 कॉल्स है तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल n कॉल्स होंगे, तो एक आपकी साइज डिक्रीज हो गई ना. तो t ऑफ n इक्वल टू 2t ऑफ n-1, क्योंकि आपने एक एलिमेंट पे डिसाइड कर लिया आपको लेना है कि नहीं लेना है. आपके पास n एलिमेंट्स थे जिन पे आपको डिसाइड करना था,
या तो आपने उसको लिया या तो नहीं लिया, और रिमेनिंग n-1 पे आप रिकर्सिवली डिसाइड करने गए वेदर यू वांट टू टेक इट और नॉट टेक इट, राइट. सो ये 2t ऑफ n-1 और यहाँ पे तो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम ही लगेगा. सो t ऑफ n इक्वल टू 2t ऑफ n-1 प्लस c. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब इसका कोड देखते हैं. सो यहाँ पे आई हैव रिटन पावर सेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इंक्लूड IO stream, right, and I will say include vector. Okay, so vector is nothing but a dynamic array, okay, in C++. So using namespace std int main. So first of all I have a string s, ठीक है, जो मैं यूजर से लूंगा, right, and then I will find the length of this string. So I will say n is equal to s dot size. Let me zoom it a bit, okay, and let me take I and j further for any use. And now I will take one vector of string, okay, मतलब कि इसमें जो है वेक्टर स्ट्रिंग आंसर, तो इसमें जो है मैं सारी सबसेट्स जो है इसमें स्टोर करूंगा. सो दिस विल बी द पावर सेट. ओके, नाउ लेट मी कॉल द फंक्शन पावर सेट स्टार्टिंग विथ इंडेक्स 0. टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. दिस इज माई स्ट्रिंग s. दिस इज द स्ट्रिंग जनरेटेड टिल नाउ. अभी तक तो हमने कोई कैरेक्टर लिया नहीं, तो ये एम्प्टी होगी. एंड माई आंसर वेक्टर, तो जब भी मुझे एक सबसेट मिलेगा मैं इस आंसर में पुश कर दूंगा. ओके, एंड देन आफ्टर कमिंग बैक व्हाट आई विल डू इज आई विल से m is equal to answer dot size, that is the power set size, and for I equals to 0, I is less than m, I plus plus, I will print out the power set. So I will say answer of I. Okay, and here I can write power set is. Okay, and now let me write this power set function. इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ. So void power set int I int n. This is your string s. This is your string generated till now, and this is your vector string जिसमें कि हम सारी सब स्ट्रिंग्स ऐड करेंगे. और इसको मैं रेफरेंस से लेता हूँ ताकि मैं जो भी यहाँ पे चेंजेस करूँगा वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो. अब बेस केस क्या है, अगर i की वैल्यू n के बराबर हो गई तो बेस केस हो गया, तो जो भी जनरेटेड स्ट्रिंग होगी वो एक सबसेट होगी, तो उसको मैं आंसर में ऐड कर दूंगा. सो आई विल से आंसर डॉट पुश बैक जनरेटेड स्ट्रिंग एंड आई विल से रिटर्न. ओके, रिटर्न स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो आगे फर्दर रिकर्शन होंगे, राइट, और ख़त्म ही नहीं होंगे. बेस केस पे हमें रिटर्न हो जाना है. अगर बेस केस नहीं है तो मेरे पास दो चॉइस है. Either you take the ith character or you do not take the ith character. So I will say power set. I will make this recursion call I plus 1 इंडेक्स पे. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, ये मेरी स्ट्रिंग है s. एंड अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि ith कैरेक्टर मुझे लेना है तो जनरेटेड स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, जनरेटेड स्ट्रिंग प्लस s ऑफ i. फॉर एग्जाम्पल जनरेटेड स्ट्रिंग अभी तक थी a, अब मैं डिसाइड करता हूँ मुझे c लेना है, तो नाउ इट विल बिकम ac. So that's why generated string अभी तक जो है वो है a, and if I decide to take c it will be a plus c. Okay, and then this will be my answer, and if I decide not to take it, it would be power set I plus 1 n s. जनरेटेड स्ट्रिंग एज इट इज रहेगी. फॉर एग्जाम्पल अभी तक जनरेटेड स्ट्रिंग है ए बी, एंड इफ आई डिसाइड नॉट टू टेक सी तो वो ए बी ही रहेगी एंड विल मूव टू फर्दर रिकर्शन, एंड दिस विल बी माई आंसर वेक्टर. ओके, नाउ यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये जनरेटेड स्ट्रिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सी फॉर एग्जाम्पल जनरेटेड स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे है ए बी डी, राइट, एंड नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर एस ऑफ आई जो है वो है ई. ओके, so if I decide to take it, my new generated string, let's say generated one, will become a b d e, right? So one thing which I can do is I can say generated string is equal to generated string plus s of I, and then pass the generated string here, right? But उसमें क्या होगा, अब मेरे पास यहीं पे a b d e हो गई. अब जब मुझे ये सेकंड कॉल करना है जहाँ पे मेरे पास मुझे ये ई को नहीं ऐड करना है, ए बी डी को एज इट इज पास करना है, ith कैरेक्टर को मुझे ऐड नहीं करना है, वहाँ पे मुझे वापस ये लास्ट कैरेक्टर को इरेज करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको सिंपलर करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने प्लस एस ऑफ आई कर दिया और इसको मैंने हटा दिया. तो इस फंक्शन में जो लोकल वेरिएबल है ना वो जनरेटेड स्ट्रिंग ए बी डी ही रहेगा, है ना, जो लोकल वेरिएबल है वो. लेकिन यहाँ पे जो पास होगा आगे रिकर्शन में वो ए बी डी ई पास होगा.
तो जब मैं वापस इस रिकर्शन से आऊँगा तब यहाँ पे मेरे पास जो जनरेटेड वेरिएबल है ना उसमें ABD ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. इट्स लाइक लेट से आपके वेरिएबल A में है वैल्यू 5 है ना, तो वन वे इज यू से A इज इक्वल टू A+4 एंड देन यू पास इट टू अ फंक्शन A. तो अब ये फंक्शन, ये A वेरिएबल की वैल्यू 9 हो गई. एंड दूसरा ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पे A+4 पास कर दो तो फंक्शन में फर्दर 9 पास होगा बट इस वेरिएबल की वैल्यू 5 ही रहेगी, राइट. सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, राइट. सो ये जो है, ये जनरेटेड वैल्यू जो है मैंने इसको मैंने नहीं लिया है, राइट. तो इसको मैंने नहीं लिया है, राइट. तो ये जो है ABD ही रहेगा आफ्टर यू कम बैक एज वेल, राइट. सो इफ आई नाउ कंपाइल इट, let me take this above, so just a second. Okay, let me save this and let me compile it. So clang plus power set minus o power set dot out कंपाइल हो गया, ./power set dot out. अब ये मेरे से एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, तो लेट मी से ABC. तो यहाँ पे क्या आ गया, पावर सेट इज ABC, AB, AC, A, BC, BC और यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी प्रिंट हो रही है, ठीक है. इट ऑब्वियसली इट्स नॉट विजिबल बिकॉज इट्स जस्ट अ स्पेस, बट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हमें सारे के सारे सबसेट्स या सब सीक्वेंस मिल गई. अगर इसको वापस रन करें एंड इफ आई राइट करंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें टोटल 5 एलिमेंट्स है, तो 32 एलिमेंट्स मिलेंगे उसके सबसेट में, राइट. सॉरी, पावर सेट में 32 सबसेट्स होंगे, तो यहाँ पे 32 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, राइट. एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं कोड में हमने क्या किया. स्ट्रिंग ली यूजर से इनपुट में n इज इक्वल टू द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, एक वेक्टर लिया ऑफ स्ट्रिंग जिसमें सारे सबसेट्स में ऐड करूंगा. फिर मैंने पावर सेट कॉल किया ऑन i एंड n, इनिशियल i वैल्यू इज 0 विच आई विल वेरी फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू n. ओके, एंड व्हेन i विल बी इक्वल टू n दैट वुड बी द बेस केस. ये है मेरी स्ट्रिंग, ये है जनरेटेड स्ट्रिंग एंड ये है मेरा आंसर वेक्टर. So if I becomes equal to n, that's the base case. So you push back the generated string in the answer vector and return. Otherwise, you either decide to take the ith character, so your generated string will become generated plus s of I, or you decide not to take it, so it will remain as it is, right? और आपके सारे सबसेट्स जनरेट हो जाएंगे एंड देन यू कैन टेक m इज इक्वल टू द साइज ऑफ द पावर सेट एंड देन प्रिंट ऑल ऑफ देम वन बाय वन. आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा. थैंक यू.